Hello student, welcome back to my channel. Today's class we are going to discuss the application of operational amplifier. The application of operational amplifier are categorized into a two type. One is called as a linear application of operational amplifier and another one is called as a non-linear application of operational amplifier. So when the circuit is called as a linear circuit and when the circuit is called as a non-linear circuit. Linear circuit, the circuit in which the shape of the output signal is same as the input signal, then the circuit is called as a linear circuit. Non-linear circuit, it means the circuit in which the shape of the output signal is different from the input signal is called as a non-linear circuit. तो वैसे ही आपकी एप्लीकेशन दो तरीके की एप्लीकेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, लीनियर एप्लीकेशन, नॉन लीनियर एप्लीकेशन. Important linear applications are non-inverting operational amplifier, inverting operational amplifier, buffer, subtractor, inverter, adder. Important non-linear applications are integrator, comparator, differentiator, Schmitt trigger. तो ये सभी एप्लीकेशन हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, जो आप लोगों को एक से दो एप्लीकेशन एग्जाम में आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे. साथ में ही इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको एग्जाम में आएंगे. लेट्स डिस्कस द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर. सो व्हेन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कॉल्ड एज अ इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर. You know about the operational amplifier. The operational amplifier operated in a single-ended input and single-ended output. It means कोई भी एक इनपुट टर्मिनल को हम लोग इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और दूसरा इनपुट टर्मिनल क्या रखेंगे, तो ग्राउंडेड करेंगे. ओके तो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वी आर प्रोवाइडिंग द इनपुट वोल्टेज to the inverting terminal of operational amplifier and non-inverting terminal get grounded. So such operational amplifier is called as a inverting operational amplifier. So with the help of the resistor Ri, that is the input resistance, we guys are providing input voltage to the inverting terminal of operational amplifier. The feedback voltage is obtained with the help of the feedback resistance Rf. It means the feedback is provided to the operational amplifier with the help of resistor or through the resistance Rf. Always the output voltage is taken from the pin number 6. तो output voltage हमेशा input भी with respect to ground देना पड़ता है बच्चों, और output भी with respect to क्या लेना है, तो ground लेना है. ओके तो ये आप लोगों को वाइवा में पूछा जाता है. व्हेन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कॉल्ड एज ए इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो जब इनपुट वोल्टेज कहाँ पे दिया जाता है, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को दिया जाता है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड किया जाता है, तब उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को क्या बोला जाता है, तो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोला जाता है. Now there is a one of the important concept, that concept is the virtual ground concept. For the ideal operational amplifier, you know that the open loop gain of the ideal operational amplifier, which is denoted by AOL, is nothing but infinity. And you know that the output voltage is given by, output voltage is nothing but AOL times the input voltage. In case of operational amplifier, that voltage is denoted by the differential voltage. So from this, the differential voltage is nothing but the output voltage upon the AOL, but the open loop gain of the ideal operational amplifier. And as per the ideal operational amplifier, the open loop gain is infinite. As the open loop gain is infinite बच्चा लोग, differential input voltage क्या हो जाएगा उस टाइम पे, तो ज़ीरो हो जाएगा. तो VD की वैल्यू क्या हो जाएंगी, as per the concept ज़ीरो हो जाएंगी. And you know what is the differential voltage? The differential voltage is nothing but the difference of the two input voltage, that is V2 minus V1 is equal to 0. What is the V2? Input voltage to the non-inverting terminal. V1 is nothing but the input voltage to the inverting terminal. So you can say that V2 is equal to V1. और यहाँ पे मैंने डिनोट किया है द वोल्टेज अक्रॉस द इन्वर्टिंग टर्मिनल इज VA, द वोल्टेज अक्रॉस द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज डिनोटेड बाय VB. तो आप लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द जो डिनोट मैंने किया है, तो आप बोल सकते हो कि VA किसके बराबर है, तो VB के बराबर है.
और V भी किसके बराबर है, तो VA के बराबर है। अकॉर्डिंग टू द विच कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। इवन दो यहाँ पे आप लोगों ने वो वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, बट हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि एज दी बी टर्मिनल को हम लोगों ने क्या किया है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम लोगों ने ग्राउंडेड किया है, तो जो ए नोड के ऊपर भी वोल्टेज क्या आ रहा है, तो ए टर्मिनल के ऊपर भी वोल्टेज 0 ही आ रहा है। दोनों के ऊपर क्या आएगा, तो सेम वोल्टेज आएगा। इवन दो हम लोगों ने ए टर्मिनल को ग्राउंडेड नहीं किया है, बट स्टिल इट फील लाइक कि वहाँ पे कितना पोटेंशियल है, तो 0 पोटेंशियल है, ग्राउंड पोटेंशियल है। ओके, एंड दैट नथिंग बट कॉल्ड एज अ वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। ओके बच्चों, इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम लोग सभी एप्लीकेशन ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पढ़ने वाले हैं। सो यू शुड क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो इसका डिटेल में भी एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी, तो आप लोगों को यहाँ से एक छोटा क्लियर आइडिया मिल चुका होगा कि इन केस ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट द वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज इक्वल टू द वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल। In the inverting operational amplifier, the input voltage is provided to the inverting terminal of operational amplifier, and current flowing through this branch is II, that is the input current, and the current flowing through the feedback resistance RF is denoted by IF. Okay, so यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन किस तरीके से दी गई है, तो always remember the current flow from high potential to the low potential. In a inverting operational amplifier, suppose you guys are providing the positive input, तो जो भी आउटपुट आएगा आप लोगों का निगेटिव आएगा। ओके, तो और आप बोल सकते हो 180 डिग्री के फेज शिफ्ट में आएगा। तो सपोज यू गाइज आर अप्लाइंग द पॉजिटिव इनपुट टू द इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो आप लोगों को वो आउटपुट सिग्नल कैसे मिलेगा, तो निगेटिव मिलेगा, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ निगेटिव साइन। ये कैसे आया वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी करंट की डायरेक्शन देखो, तो मैंने क्या बोला है, हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो होता है। सो हियर वी अप्लाई सम पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज है, एंड अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट पॉइंट ए पे कैसा पोटेंशियल आ रहा है, तो 0 पोटेंशियल आ रहा है, ग्राउंड पोटेंशियल आ रहा है। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अभी यहाँ पे देखो द फीडबैक करंट कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से जा रहा है एंड कम टू द आउटपुट साइड। आउटपुट कैसा आ रहा है, हम लोगों ने सपोज वी आर प्रोवाइडिंग द पॉजिटिव इनपुट, तो आउटपुट निगेटिव आ रहा है। यहाँ पे कैसा वोल्टेज है, तो 0 वोल्टेज है। यहाँ पे कैसा वोल्टेज है, तो निगेटिव वोल्टेज है। हमेशा करंट कैसे, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो होता है। तो यहाँ पे 0 पोटेंशियल पे वो कहाँ से फ्लो होगा, तो निगेटिव पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे दी गई है, आप लोगों की इनपुट करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है और फीडबैक करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है। ओके, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में डायरेक्शन चेंज होंगी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो व्हेन यू गाइज अप्लाई द किरचॉफ करंट लॉ टू द नोड ए, सो टू द नोड ए II is the incoming current and IF is the outgoing current. There is again one current that is denoted by IB minus, that is nothing but the inverting bias current. Actually जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो कुछ अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करता है, ऐसे हम कंसिडर कर रहे हैं। सो एज पर दिस जब हम लोग किरचॉफ करंट लॉ लगा रहे हैं एट नोड ए, सो व्हाट इज द किरचॉफ करंट लॉ, द समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। सो द इनकमिंग करंट सिर्फ एक है, सो II इज इक्वल टू द समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। देयर आर 2 आउटगोइंग करंट, IF एंड IB माइनस, सो IB माइनस प्लस IF। But as we are talking about the ideal operational amplifier, the ideal operational amplifier having the infinite input impedance, तो इनपुट इम्पीडेंस इन्फानाइट रहने की वजह से देयर इज अ नो करंट ड्रॉन बाय द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो हमने क्या कंसिडर किया था कि कुछ तो भी करंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर ड्रॉ करेगा, कहाँ से, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल में से। बट ऑपरेशनल एम्पलीफायर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका इनपुट इम्पीडेंस क्या रहता है, इन्फानाइट रहता है। तो इनपुट इम्पीडेंस इन्फानाइट रहने की वजह से द वैल्यू ऑफ IB माइनस इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों का इक्वेशन क्या हो जाएगा, II इज इक्वल टू IF। क्लियर है बच्चों? Now apply the Ohm's law. So what is the Ohm's law? According to the Ohm's law, the current is given by V upon R.
ओके, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? द करंट इज फ्लो फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो किस तरीके से लिखोगे? द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वी आई. इन दिस केस द पोटेंशियल एट दिस नोड इज वी ए. मैंने क्या कंसिडर किया है कि इस नोड पे पोटेंशियल क्या है? वी ए है. तो क्या लिखोगे? वी आई माइनस वी ए. कौन से रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है? तो इनपुट रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है, अपॉन आर आई. क्लियर है बच्चों? ऑलवेज द करंट इज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो यहाँ तक आप लोगों का करंट फ्लो हो रहा है. तो कहाँ से? हाई पोटेंशियल इज द वी आई, लो पोटेंशियल कहाँ तक आ रहा है? तो वी ए तक आ रहा है, विच इज नथिंग बट इक्वल टू the feedback current is flow from VA to V out. So VA minus V out अपॉन कौन से रेजिस्टेंस से पास हो रहा है वो करंट? तो फीडबैक रेजिस्टेंस से पास हो रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अभी हम लोगों ने देखा है. So, according to the virtual ground concept, the voltage at point A is equal to the voltage at point B. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? VA is equal to VB. just now हम लोगों ने देखा. तो क्या है? VB को किसके साथ कनेक्ट किया है? ग्राउंड पोटेंशियल पे कनेक्ट किया है. तो हमें क्या लगता है कि VA का भी पोटेंशियल कितना है? तो 0 है. तो VA किसके बराबर है? 0 के बराबर. सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. So equation 1 become VI. What is the value of VA according to the virtual ground concept? 0 upon RI is equal to 0 minus V out upon RF. So VI upon RI is equal to V out upon RF. So can you find the output voltage? So output voltage is given by V out is equal to. तो यहाँ पे RF कहाँ पे चला जाएगा बच्चों? तो न्यूमरेटर में चला जाएगा. डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा. और माइनस साइन आप लोग यहाँ पे लोगे तो VI इंटू RF अपॉन RI. क्लियर है बच्चों? इसी को ही लिख सकते हैं. V out इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन RI into the VI, और you can say that input voltage. क्लियर है? आउटपुट वोल्टेज को कैसे लिखा जाता है? तो आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट दी A टाइम्स द इनपुट वोल्टेज. इन दिस केस यू कैन कंसिडर दिस गेन एज अ क्लोज लूप गेन, क्योंकि ये गेन कब मिला? जब आप लोगों ने फीडबैक दिया था. आउटपुट इज गिवन टू द इनपुट विद द हेल्प ऑफ वन रेजिस्टर. तो आप लोगों का कैसा गेन मिल रहा है? ये तो क्लोज लूप गेन मिल रहा है. तो आप लोग जब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करोगे, सो द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ACL? क्लोज लूप गेन की वैल्यू क्या होगी? तो क्लोज लूप गेन की वैल्यू है आपकी माइनस RF अपॉन RI. क्लियर बच्चों? तो गेन की वैल्यू क्या है आप लोगों की? तो गेन इज नथिंग बट माइनस RF अपॉन RI. So what is this negative sign indicate? This negative sign indicates the input and output में 180 degree of phase shift है. And this closed loop gain is not depend upon the any parameter of operational amplifier. It's just depend upon the external components are connected to the operational amplifier. जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट हुए हैं उसके ऊपर आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्लोज लूप गेन है. वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस एंड द इनपुट रेजिस्टेंस, उस हिसाब से आप लोगों का क्लोज लूप गेन क्या होगा? चेंज होगा. क्लियर? The gain of the operational amplifier is not dependent on the internal parameter of the operational amplifier. तो जो भी externally connected resistor है उसके ऊपर ही dependent है. Okay? So this is the output equation and the closed loop gain equation of the inverting operational amplifier. The output equation is equal to minus RF upon RI into the input voltage, and the closed loop gain is given by minus RF upon RI. Just now we're done with the inverting operational amplifier. This inverting operational amplifier can be used as an inverter or a sign changer. So how? The output equation of the inverting operational amplifier is given by V out is equal to minus RF upon RI into the input voltage. So the gain of the inverting operational amplifier is given by
The closed loop gain of the inverting operational amplifier is given by minus RF upon Ri. In case of the inverter or a sign changer, the input voltage and feedback is applied through a same value of resistor. That is, the value of Ri and the value of Rf is equal to the R. So what happened to the output equation? So Vout is nothing but equal to minus R upon R. RR get cancel out and you will get the output voltage is nothing but the input voltage, but in between this there is a negative sign. Okay, in next video lecture we will cover the numerical on inverting operational amplifier. Hope so you guys are clear with the inverting operational amplifier, and the operational amplifier is used as a sign changer. Any doubt related to this two topic, you can comment me below. Thanks for watching this video. Share with your friends and subscribe the channel.